Alaikum. Today our topic is regarding collection of land revenue areas. Uh, the thing is that before going into this question, one should understand what do you mean by areas, and we have studied it in section 4 of present act, and I have already uploaded slides regarding what is land revenue area. One thing you should always remember that arrears, when we call, it means that these are those payments which are bound to be paid by landowners in respect of their lands, in respect of the produce, and it will always happen, of course, on those kinds of lands which are included in the Land Revenue Act 1967, on which the provisions of this act are applied. What are the kinds of lands? We have already discussed. What is land revenue? We have already discussed. What is the area of land revenue? You can go into section 4 of the present act and you can understand it more. Here in this question, what we are going to study that whoever has been liable to pay land revenue and he has not paid it yet, then what will be the procedure to take to be paid by government, and how the whole process will take place. So let us start. First of all, one should understand that who is liable to pay land revenue. Liability to pay land revenue, payment of the land revenue is bar on holding itself, that is liable, and landowner himself. So this is the thing that you need to understand now, that land revenue is going to be paid by landowner for sure, and if landowner is not able to pay the revenue, then the holding means the land itself will be liable to pay. यानी कि आप ये सोचें कि अगर लैंड ऑनर रेवेन्यू नहीं पे करता तो रेवेन्यू कहाँ से निकाला जाएगा? उस लैंड से निकाला जाएगा, यानी कि वो लैंड इटसेल्फ इज लायबल टू पे लैंड रेवेन्यू. So this whole phenomena we will discuss it, that how this holding is going to be liable. ये this is something which may शायद इसको अभी पढ़ते वक्त हमें लगे कि ये किस तरह से हो सकता है, लेकिन ये इस तरह है, वो हम आगे इसको देखते हैं. One thing you need to understand that land, or there are a lot of times when there is joint खाता. जब joint खाता होता है, जब बहुत से लोग किसी एक लैंड के ऑनर्स होते हैं या उसके यदि वो लैंड ऑनर्स हैं, जॉइंटली हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो किसी एक पे डाल सकती है कि भाई तुम इसको पे करो, या फिर वो सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है कि तुम मिलके तुम अलग-अलग पे करो. अच्छा देखिए, जब किसी एक पे भी डालते हैं तो भी इन दी एंड होता यही है कि वो एक जो है अपना हिस्सा बाकियों से लेता है. तो इसमें कुछ अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ सेक्शंस अगर आपके जहन में आती हैं कि जिनमें ये बात होती है कि एक शख्स जो है वो कैसे अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करता है, जबकि वो सब के सब जो वो है वो लाइबल होते हैं. Different modes for the recovery of arrears of land revenue. Arrears are amount which becomes due in the statement of demands and remains unpaid. You remember that landowner is that lambardar. Sorry, the lambardar is the one who knows landowners in his moza. So he is the one who actually delivers to all the people there, all the landowners there, that this is the amount that you need to pay, and this is the date
until when you need to pay, and who is going to announce the dates, and who is going to announce the procedure of assessment. That is always done by Board of Revenue. We have already discussed it in the chapter of assessment, because Board of Revenue is the one who is doing the final assessment. He is the one who is certifying the assessment, and Board of Revenue is the entity which describes the date on which land revenue is payable. Section 81 deals with the issuance of the notice, but before the issuance of notice, Lambardar is a person responsible to collect and deposit land revenue in due course of time. Upon the failure of Lambardar to do so after application of legal method, he informs revenue officer within 6 months. So even before revenue officer is issuing the notice of demand to the defaulter, Lambardar himself has to try to collect the land revenue, and he and you can see that ample time of 6 months has been given for this 6 months time has been given to Lambardar to collect the land revenue. But if he is failed, then for sure the next step would be revenue officer. He issues notice of demand to defaulter and gives 15 days prior for payment of land revenue. Notice is mandatory. It is call of the competent authority, because if this notice is not given, then we will not be able to go to the other steps which we are going to study. Revenue officer may send another notice to defaulter, and after lapse of 30 days, the following procedure is adopted. An order is passed by revenue officer that a defaulter shall be produced before him, who may detain him up to 24 hours. Upon failure to recover arrears within 24 hours, he has to produce defaulter before collector or deputy commissioner, whatever the case may be, for sure, who may pass orders for his further detention up to 30 days. So 30 days of civil imprisonment can be ordered by collector, deputy commissioner, in case the person who has been detained by revenue officer has not paid land revenue. In this section, there are some amendments. For example, when it comes to KP, Khyber Pakhtunkhwa, there you have the distinction between assistant collector grade 1 and assistant collector grade 2. So, in that case, assistant collector grade 1 can detain a person up to some days, more than 24 hours. You can read more when it comes to the amendment especially the amendment that is in the Revenue Act of Khyber Pakhtunkhwa. During the detention, if defaulter discharges his obligation and pays land revenue or produces acceptable security, the security that कोई एक बंदा आता है वो उसकी जगह कोई ज़मानत दे देता है कि भाई अगर इसने पे नहीं किया तो मैं कर दूंगा, तो भी उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है. He is released at once. If he remains failed to pay arrears, next step is taken. This action cannot be taken against others joint landowners, females, minors, lunatic and idiots. फीमेल्स को स्पेशली देखें ना, जब जहाँ पे लैंड ओनर्स एक या एक से ज़्यादा होते हैं, तो नॉर्मली ऐसे होता है कि जिस बंदे ने लैंड रेवेन्यू 50% से ज़्यादा देना होता है, डिटेंशन उसी की होती है. डिस्ट्रेस एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स. अब ऐसे है कि जब आप ये देखते हैं कि आपने जो पिछले जो हमने मेथड्स अप्लाई किए, यानी कि 24 आवर्स का आपने वो कर दिया, यानी कि 24 आवर्स में तक आपने उसको डिटेन किया, 30 दिन तक डिटेंशन भी आपने उसकी की, और उसके बाद भी जो है वो उस बंदे के पास से लैंड जो एरियर्स हैं वो रिकवर नहीं हुए, तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप किया जाएगा वो है सेल ऑफ. बेसिकली उसमें होता ही है कि जो अनकट क्रॉप्स होते हैं, या जो कि गैदर्ड अनकट क्रॉप्स होते हैं, या वो अनगैदर्ड भी हों,
तो इन क्रॉप्स को बेसिकली आप जो हैं वो रिकवर करते हैं। अच्छा, इसमें आपने ये देखना है कि अनकट से मुराद ये है कि जो स्टैंडिंग क्रॉप्स होती हैं वो, या अनगैदर्ड क्रॉप्स या गैदर्ड क्रॉप्स, इनमें जो फ़र्क ये आता है कि गैदर्ड क्रॉप्स तो शायद वो क्रॉप्स होंगी जिनको द पर्सन हैज़ कट दैम, उसने उनको बाकायदा लोड किया हुआ है, उनको वो लेकर जा रहा है, तो ये उस सेंस में। जबकि अनगैदर्ड का मतलब ये होता है कि वो क्रॉप्स जो अभी तक गैदर नहीं हुई हैं, जिनको अभी तक इस तरह से बाकायदा उनको पैकिंग की शक्ल में नहीं उनको लेके जाया जा रहा कहीं, या नहीं कहीं पे लेके जाया गया। तो अब ये भी आपने याद रखना है कि जो एरियर्स, देखिए जब एरियर्स डिटरमिन करना, ये बेसिकली रेवेन्यू कोड का काम होता है। और ये जो सेल ऑफ इमूवेबल, ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये रेवेन्यू कोड के ऑर्डर से ही होगी, ये इसके अलावा नहीं होती। तो इसका तरीकाकार बेसिकली यही होता है कि पहले आपने एक नोटिस भेजना होता है उसको कि हम तुम्हारी ये लैंड में से क्रॉप्स को हम काटेंगे क्योंकि तुमने लैंड रेवेन्यू में पे नहीं किया हुआ। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये बाकायदा रेवेन्यू कोड करती है, यानी कि ये रेवेन्यू ऑफिसर ख़ुद से एकदम से ये स्टार्ट नहीं कर लेगा, इवन कि उसने जो पहले वाले स्टेप लिए हैं उसके बाद भी। और इस सारे टाइम में कहीं पे भी किसी भी मौके पे अगर लैंड ऑनर अपने एरियस डिस्चार्ज करता है तो ये सारा प्रोसेस उधर ही स्टॉप हो जाएगा, ये याद रखनी है अपने बात। But there are certain exceptions under present section and under section 60 of Civil Procedure Code as follows: grains necessary for livelihood sufficient for period of 1 year for his family, यानी इतने ग्रेन्स भी नहीं, आपने सारे नहीं लेने। फॉडर विच इज़ नेसेसरी फॉर कैटल फूड, जो उनका चारा होता है वो नहीं लेकर जाना। टूल्स ऑफ हस्बेंड्री फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन एंड सीड, यानी कि कोई जानवरों के, मवेशियों के भी अगर कोई के जो आलात हैं, या उनके लिए जो चारा काटने की जो चीज़ें हैं, या आपकी फसलें काटने की जो चीज़ें होती हैं, उनको आप उनको सेल नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग अंडर सेक्शन 84, रेवेन्यू ऑफिसर ट्रांसफर्स द होल्डिंग ऑफ द डिफॉल्टर टू अदर लैंड ऑनर ऑफ द स्टेट who is willing to pay arrears and accept conditions which Deputy Commissioner thinks fit to prescribe. Maximum period of transfer is 1 agricultural year. Maximum transfer of holding is 15 years. सॉरी, मिनिमम जो पीरियड ऑफ ट्रांसफ़र है वो 1 एग्रीकल्चरल ईयर है, और मैक्सिमम ट्रांसफ़र जो है वो 15 ईयर्स होता है। कलेक्टर रिपोर्ट्स इट टू कमिश्नर हु इज़ कम्पिटेंट टू मेक एनी ऑर्डर। सो इन दी एंड जो कमिश्नर जो है उसने होल्डिंग की ट्रांसफर्स का ऑर्डर देना है, और ये उस बंदे को ट्रांसफ़र किए जाएंगी लैंड ऑनर जो शख्स उस इलाके में लैंड ऑनर हो, वो खुद बंदा जिसको ट्रांसफ़र की जा रही है वो खुद डिफ़ॉल्टर भी ना हो, और वो एग्री करे उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे उसको लैंड ट्रांसफ़र की जा रही है। और ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं ये सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर होता है, ये आपने याद रखना है। यानी कलेक्टर भी इसको खुद से नहीं करता, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन कमिश्नर जो अप्रूव करता है। ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग इज रिस्टोर्ड टू द डिफ़ॉल्टर व्हेन ही पेज एरियर्स, एंड दिस इज़ वेरी क्लियर। रेस्टोरेशन रिक्वायर्स द कंप्लीशन ऑफ एग्रीकल्चरल ईयर। अब देखना, उस दिन उस शख्स ने जिस दिन अगर एरियर्स अपने वो उसने दे, लेकिन वहाँ पे जिस लैंड ऑनर को ये ज़मीन दी गई है उसकी अपनी क्रॉप्स वहाँ पे हों, उसका अपना वहाँ पे कुछ उसने इम्प्रूवमेंट उसने की है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट क्या है, उसने कोई ज़मीन, कोई ट्यूबवेल वहाँ पे खुदवा लिया, या कोई उसने ऐसी चीज़ की। क्योंकि देखना, ये ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग अप टू 15 ईयर्स तक जाती है, तो फिर वो कम से कम एक एग्रीकल्चरल ईयर का ना उसको एक उन्होंने दिया है कि एक एग्रीकल्चरल ईयर के बाद जो अगर स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं या कुछ चीज़ें उधर मौजूद हैं, तो वो एग्रीकल्चरल ईयर पास होने के बाद ही जो है लैंड वापस उसको ट्रांसफ़र की जाएगी। कम से कम वो एक एग्रीकल्चरल ईयर कंप्लीट हो। ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग में बी ऑफ फिक्स पीरियड एंड ऑटोमेटिकली रिस्टोर्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड। अगर उसको 5 साल के लिए दिया गया है, 6 साल के दिया था, तो ऑटोमेटिकली 6 साल बाद उसको वापस किया जाएगा, लेकिन एरियर्स कंप्लीट हो जाएं तब, वरना अप टू 15 ईयर्स नॉर्मली इसको चलाते हैं। अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग अंडर सेक्शन 85। अटैचमेंट फॉलोज सम रूल एंड रेगुलेशन एंड हैज सर्टेन प्रोसेसेस एज फॉलोज। अब अटैचमेंट कौन करता है? अटैचमेंट कलेक्टर खुद करता है, अपने, यानी वो अपनी
पोजेशन में लैंड को ले लेता है। कंडीशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग वेयर देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 84 कलेक्टर कैन अटैच द होल्डिंग ऑफ डिफॉल्टर टू रिकवर द एरियाज ऑफ डिफॉल्टर। अब देखिए अगर फर्ज किया उनको कोई बंदा ही ना मिले ऐसा उस पूरी स्टेट में जो वो लैंड लेना चाहता हो, क्योंकि वो जो बंदा लैंड लेगा उसने भी तो एरियर्स को पे तो करना है, वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो अप्रूव उनको बंदा नहीं मिलता तो फिर कलेक्टर जो है वो खुद से अगर ये जो पिछली सेक्शन यानी प्रीसीडिंग सेक्शन 84 वाला मामला नहीं होता फिर कलेक्टर जो है वो सेक्शन 85 के अंडर जो है इसको प्रोसीड करता है। कलेक्टर में टेक द मैनेजमेंट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ अटैच्ड होल्डिंग ऑन and he also may appoint an agent for that purpose. In any case, either collector or his agent shall cultivate the land and arrears shall be paid from the cultivation proceeds arising out from such land. ये बिल्कुल एक सिंपल बात है। मैक्सिमम पीरियड फॉर द पर्पज ऑफ अटैचमेंट ऑफ लैंड इज प्रोवाइडेड 5 years। 5 years से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होती। दिस पीरियड डज नॉट कमेंस एट वंस बट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट एग्रीकल्चरल ईयर। Period of attachment gets end soon on the moment when arrears are paid and land is released in the favor of defaulter. Whenever arrears are paid, इसको वापस आपने लैंड को आपने वापस डिफॉल्टर को करना है। अब ये भी बता दें कि जो होल्डिंग की जो ट्रांसफरेंस है, चाहे वो होल्डिंग की ट्रांसफरेंस हो किसी दूसरे लैंड ऑनर के पास या कलेक्टर इसको खुद अटैच करे, इन दोनों केसेस में आपने अलग-अलग नोटिस ज़रूर सर्व करने हैं कि भाई हम तुम्हारी लैंड जो है वो हम अपने पास ले रहे हैं क्योंकि तुम लैंड एरियर्स नहीं दे रहे। और ये बाकायदा जो प्रोसेस है इसको रेवेन्यू कोड जो है वो देखती है बाकायदा इस सारे प्रोसेस को। कलेक्टर और हिज एजेंट शैल गिव इफेक्ट टू ऑल द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आइदर टेनेंसी लीज एंड मॉर्टगेज और अदरवाइज ही शैल रिसीव ऑल द प्रॉफिट्स एंड रेंट्स टू एडजस्ट द एक्रूड अमाउंट ऑफ एरियर्स। देखें अगर उस लैंड को ऑलरेडी कोई टेनेंट्स हैं, कोई टेनेंसी एग्रीमेंट है कि वो लैंड ऑलरेडी किसी के पास मॉर्टगेज्ड है, तो ये सारे के सारे जो ऑलरेडी उस लैंड के ऊपर इनकम्बरेंसेस है उनको कलेक्टर जो है वो उनको ऑनर करेगा। ये नहीं कि वो ये कहेगा कि जी अब हमने लैंड ले लिया, अब जो कोई टेनेंट है वो यहाँ से निकल जाए, जो कोई मॉर्टगेज इसने किसी बैंक को किया तो वो भी ख़त्म हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो अपनी जगह पे रहेंगे, उनको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, या उनसे अगर कोई इनको प्रॉफिट्स हो रहा है तो वो प्रॉफिट्स ये एरियर्स के अगेंस्ट यूज़ करेंगे। ये आपने बात याद रखनी है। और इसमें ये भी मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी कोई भी सरप्लस, कोई प्रॉफिट्स का जो सरप्लस होता है जो कि इस अटैचमेंट की कॉस्ट को कवर कर जाए, मैनेजमेंट की कॉस्ट को कवर कर जाए, सारी रेट्स कोई भी सेसिस जो भी हैं इन सबको पे करने के बाद जो भी कोई अमाउंट बचती है, जो भी कोई प्रॉफिट बचता है, सरप्लस बचता है, वो सरप्लस सबसे पहले इन डिस्चार्ज ऑफ एरियर्स पे यूज़ होगा। ये बात आपने याद रखनी। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉफिट जो निकलता है लैंड से वो सबसे पहले डिस्चार्ज ऑफ एरियर्स पे यूज़ होगा। तो रिस्टोरेशन ऑफ होल्डिंग वेन एवर द एरियर्स आर पेड और रिकवर्ड फ्रॉम सच होल्डिंग शैल बी रिस्टोर्ड सून इन फेवर ऑफ डिफॉल्टर विदाउट अवेटिंग द कंप्लीशन ऑफ 5 years। तो ये भी आपने समझ जाना है कि अगर चौथे ईयर में काम ख़त्म हो गया, चौथे ईयर में एरियर्स हो गए, फिनिश हो गए, थर्ड ईयर में एरियर्स फिनिश हो गए, तो फ़ौरन आपने जो है इसको वापस कर देना है। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें उसकी अटैचमेंट में जो सारे अखराजात हैं उन सबको आपने माइनस करना है। सो गाइस, दिस वाज द प्रेजेंटेशन एंड दिस इज़ कंटिन्यूड एक्चुअली। इसका सेकंड पार्ट हमने देखना है, क्योंकि ये अभी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ कि क्या क्या मोड्स हैं लैंड जो एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू है उनको रिकवर करने के लिए। सो थैंक यू।